Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Students, I am Gurmeet Singh, your EVS teacher. Okay, so students, today let us start chapter number 2, organ system that help us to move. Okay, so students, in this chapter particularly we will study about various organ system of our body and which are helping us to move, and what kind of movement here is that we are talking about, that is walk, run, talk, smile. All these activity require some movement. Okay, and in all these activities there are few organs which are helping us. Okay, so what kind of organs and about this entire chapter, so let us start. First of all, the skeletal system. क्या है भी ये skeletal system? This is the entire skeleton of a human body. Okay, there is various organ systems like a skull, a rib cage, okay, the hip joint, hip bone होती है ना ये वाली, this is called hip bone. Okay, and this is the arms bone. This is the entire skeletal system, and the other things also with the skeletal system which help us to move. Okay, we will study in the next pages. Those are the nervous system and the muscles in our body. Okay, so let us start from the skeletal system. The bones in our body help us to move, everyone knows, and there are 206 bones in all inside an adult's body. You have to underline this. Okay, there are the number of bones in an adult's body. Adult's body क्या होता है बेटा? Adult's body is we can say the body after the age of 15, 16. Okay, when you are in 10th, 12th class, at that time you can physically adult. Okay, legally जो adult है वो इंडिया में girls के लिए 18 year है and boys के लिए 21 year. Okay, so together they form the skeleton. Together bones, about the bones, यहाँ पे bones के बारे में बोल रहे हैं. Together they form the skeleton or the skeletal system. The skeletal system has three main jobs. Jobs mean कि ये जो skeletal system है entire, ये क्या क्या function perform कर रहा है हमारी body के लिए. So basically it performing three kind of structure. One is it is the frame around which our whole body is built. ये हमारी whole body को एक shape दे रहा है ना, देखिए कि पर्टिकुलरली जो स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करवा रहा है. फ्रेम अराउंड विच आवर होल बॉडी इज बिल्ट. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हमें खड़े होने के लिए हमारे जो लेग्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, और ये हमारा जो बैकबोन होता है ये हमें सीधा रहने में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी. सॉफ्ट ऑर्गन क्या क्या होते हैं अभी? सॉफ्ट ऑर्गन लाइक हार्ट, लाइक लंग्स. ओके, इनको प्रोटेक्ट करता है. कैसे? फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट है वो यहाँ सेंटर लेफ्ट में प्रेजेंट होता है. अगर रिब केज हम देखेंगे ना तो यहाँ कहीं हार्ट प्रेजेंट होता है इन दिस केज. ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है कि सामने से अगर कोई भी चीज़ हिट होती है तो वो ये रिब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को कि उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हो. ठीक है, ऐसे ही लंग्स जो होते हैं वो बॉडी में कहीं यहाँ कहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर इन एरियाज में, तो लंग्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं. इस तरीके से स्केलेटन जो है वो सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड इट हेल्प अस टू मूव. भाई मूवमेंट में तो हेल्प हो ही रही है. वी कैन से जैसे आर्म का अगर ये जॉइंट है तो ये मूव कर रहा है फिंगर्स से, हम पेंसिल मैंने पकड़ रखा है विद द हेल्प ऑफ बोन. ठीक है, सो इट हेल्प अस टू मूव. सो द थ्री बेसिक फंक्शन ऑफ skeleton are, one is it is a frame around which our body is built. It protect the soft organs inside our body and it help us to move. Okay, maybe you think that bones are hard, lifeless things. They are not. They grow. That is how we grow in height. This para is about our height. कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज करती है, एज ग्रो, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी ग्रो करती है. पहले हम छोटे होते हैं बट विद द रनिंग एज हम जब बड़े होते हैं तो हमारी बोन्स भी ग्रो करती हैं. एंड स्टूडेंट्स, द वन थिंग यू हैव टू नोट दैट इज for any kind of growth in bones, it required some energy, some food. Okay,
सो फूड जो है वो हमारी बोन्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, इसीलिए बोला जाता है ना बचपन में कि ज़्यादा से ज़्यादा खाइए ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो, ठीक है। when someone breaks a bone, the doctor puts the broken part together and put a plaster over the area. The two parts of the bone then grow and join up, making the bone whole again. देखिए, this is here is the author is talking about the फ्रैक्चर काइंड ऑफ थिंग। अगर कभी किसी भी बोन में अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है हाथ में या पैर में कहीं भी, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो फ्रैक्चर्ड बोन होता है ना उसको असेंबल कर देता है वापस उसी पोस्चर में जिस पोस्चर में वो पहले थी, एंड ऊपर एक प्लास्टर लगा दिया जाता है, ठीक है। सो वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द बोन फ्रैक्चर कि जो बोन्स होती हैं वो अपने आप ग्रो करती हैं और दोबारा एक दूसरे को टाइटली सेम जो एक पहले जैसी बोन को क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट बोन। अगर किसी भी चीज़ को दोबारा ग्रो करना है और अपने आप को पहले जैसा बनाना है, उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा भाई, फूड चाहिए होगा ना। सो दैट इज बोन नीड फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात इसलिए है कि जो ऑक्सीजन होता है वो फूड के साथ रिएक्ट करके इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या रिक्वायर्ड जो होता है ना फूड में से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करता है। आप सीनियर क्लासेस में आएंगे ना, वहाँ स्टडी करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, बोन्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो हमारा बॉडी सिस्टम अपने आप जो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है बॉडी में वो अपने आप एक्सट्रैक्ट ले लेता है एनवायरनमेंट से। बट फूड हमें खाना है, इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखा करो बेटा। इट इज़ गुड फॉर द बोन्स। दीज आर कैरिड to them by blood vessels running through them। ये जो फूड हम माउथ से हम अपने इंटेक करवाते हैं और वो हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है, देन आफ्टर फूड जो है बाकी की बोन्स तक कैसे जाता है। सो देयर इज़ वन थिंग, द ब्लड। आप देखिए हमारी बॉडी में हमें कहीं भी चोट लगे, चाहे यहाँ पैर पे लगे चाहे सिर पे लगे, हर जगह से ब्लड आता है ना, तो इट मीन ब्लड इज सर्कुलेटिंग एंटायर बॉडी। कहीं भी चोट लग जाए वहाँ से ब्लड ज़रूर आता है। सो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। सो ब्लड इज द ओनली कैरियर विच टेक द फूड टू एंटायर बॉडी, ओके। सो यहाँ पर देखिए जो ब्लड है वो रिक्वायर्ड फूड को लेकर जाता है कहाँ पर, बोन्स तक, ओके। द स्कल, अब आगे आ गया, दैट इज द पार्ट स्कल, ओके, दिस एरिया। स्कल में देखिए क्या क्या पार्ट है हमारे पास। दिस इज द ह्यूमन स्कल, ओके। स्कल का जो ये अपर पार्ट है ये काफ़ी सारी बोन्स से मिलकर बना होता है। ये लोअर जॉ है जो मूवेबल होता है, बाकी का काफ़ी सारा पार्ट जो होता है फिक्स होता है। ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, इसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स। तो ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन, वो हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, ओके। सो लेट अस रीड द स्कल। The bones of the head and face make up the skull. They are the hardest of all the bone. जो skull का bone है वो hardest bone होता है। Archaeologists have found that skulls of people who died thousands of years ago, all their other bones had decayed, but the skulls had remained whole. Okay, archaeologist कौन होते हैं भाई, जो लैंड को डिग करके उसमें से पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम के कुछ ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। यू हैड लिसन अबाउट ममीज, ओके। जो मिस्र की आप अगर कोई मूवी वगैरह देखी हो तो उसमें ममीज दिखाते हैं ना, तो ममी क्या होते हैं पुराने टाइम में जो लोग लोगों को, जो लोग बरीड होते थे, जो डेथ हो जाती थी, उनको दबा देते थे सॉइल के अंदर। तो वहाँ से जब स्केलेटन उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए आर्कियोलॉजिस्ट ने, देन दे फाउंड कि उनका स्कल जो था ना वो एज इट इज़ मिल जाता है। तो दैट शोज कि स्कल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है, वो डिके इतना इजीली नहीं होता, 1000 ईयर तक भी डिके नहीं होता, ओके। सो नेक्स्ट इज द स्कल हैज़ 21 बोन्स इन ऑल। यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। हाउ मच बोन्स स्कल हैज़? 21 bones, okay. Some form a case for the brain. यहाँ पे कुछ bones हैं जो एक केस बनाती हैं जिसमें brain protect रहता है, okay. Some give shape to face of all. Some give shape to the face of all the bones of the skull. Only the one
इन द लोअर जॉ कैन मूव। ये जो लोअर जॉ वाली बोन जो होती है हमारा, देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारा लोअर जॉ जो है ये वाला पार्ट ये मूव करता है ना, इट हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्कल। नाउ द नेक्स्ट इज द स्पाइन, very important part in our body, that is the spine or backbone is joined to skull. It has a number of small bones joined together in such a way that they work like a spring. देखिए जो हमारे बोन का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे इस डायग्राम में है, देखिए ये हमारी बैकबोन है और ये सभी लोगों के अंदर ये सेम ऐसी ही बैकबोन होती है। ओके, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में कुछ अलग है, सब में ये इस तरीके की ही बोन होती है। द वन स्पेसिफिक थिंग इन दिस इज कि यहाँ पे देखिए बोन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे कुछ इस तरीके से जॉइन होते हैं कि जो हमें जर्क वगैरह होते हैं वो हमारे ये जर्क्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम जंप करते हैं या कुछ, उससे हमारा जो ब्रेन है, ये सारे जर्क्स जो हमारे ब्रेन तक जो है वो नहीं पहुँचते। ठीक है, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, ये जो इस तरीके का हमारी जो बैकबोन का स्ट्रक्चर है इसकी वजह से। ठीक है, द स्पाइन और बैकबोन इज जॉइंड टू द स्कल। इट हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट इट वर्क्स लाइक अ स्प्रिंग। आप देखिए, एक अगर आपने कोई पेन वगैरह के अंदर से जो स्प्रिंग निकलता है उसको देखिएगा, उसमें भी कुछ ऐसे स्पाइरल्स बने होते हैं कि वो उनको अगर कोई एक साइड जर्क लगता है तो वो ऊपर तक आते आते जर्क को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जर्क क्या चीज़ हो सकती है? जर्क जंपिंग की वजह से जो मिल सकता है, रनिंग की वजह से मिल सकता है, सडन गिरने से या सडन उठने से भी जर्क मिल जाता है। इस तरीके के जो भी जर्क्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। इन जर्क से ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ब्रेन को। ब्रेन बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इसको जर्क से कौन बचा रहा है ब्रेन को? हमारा बैकबोन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइन भी बोल देते हैं। एंड यहाँ पर ये जो स्पाइन है, द बोन्स ऑफ द स्पाइन आर कॉल्ड वर्टिब्रे। ओके, एंड सिंगल बोन होती है तो उसको वर्टिब्रा। दैट इज द वर्टिब्रे हेल्प अस बेंड आवर बॉडी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फ्रॉम साइड टू साइड। ड्यू टू दिस वर्टिब्रे वी कैन मूव आवर बॉडी। हम आगे की साइड झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, टेढ़े मेढ़े घूम सकते हैं, बिकॉज जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें कहाँ से मिलती है? ड्यू टू दिस आर स्पाइन और बैकबोन। इसके अंदर जो ये वर्टिब्रे होते हैं, ड्यू टू दिस। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिब केज। ये वाला रिब केज है, कहाँ लोकेट होता है? देखिए यहाँ लोकेट है हमारे स्केलेटन में, विजिबल है ना? ठीक है, अब ये क्या कर रहा है रिब केज? ये रिब केज जो है ये बहुत से डेलिकेट पार्ट जैसे कि हार्ट हो गया और लंग्स हो गया, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा? या वी कैन इमेजिन दैट कि इफ़ वी हैव सम अलमीरा सॉर्ट ऑफ, उसके अंदर अगर हमने कोई चीज़ रख दी है तो अगर हम डायरेक्ट उसको कोई निकालना चाहे तो हम नहीं निकाल सकते ना। सो ऑन द सेम वे यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस जगह पर, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर दो लंग्स बने होते हैं, हमारे दो लंग्स। इसके अंदर चारों तरफ क्या होते हैं? ये बोन्स होती हैं। तो इसका हेल्प, इससे एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही कोई सामने से कोई चीज़ आती है तो वो इन बोन्स को टकरा के वापस हो सकती है। ये बोन्स जो होती हैं ये एक तरीके का कुशन प्रोवाइड करवा देती हैं। ठीक है, तो उससे जो चाहे तो जर्क की बात है या डायरेक्ट जो अटैक है वो लंग्स तक नहीं पहुँचता या ह्यूमन हार्ट तक नहीं पहुंचता। किस तरीके का अटैक हो सकता है? लाइक हम गिर जाएं तो जो चोट वगैरह लगती है, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो हमारे रिब केज जो है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, हार्ट और लंग्स को। ओके, रिब केज के बारे में देखिए, लेट अस रीड द रिब केज। 12 पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल रिब्स मेक अप अ रिब केज। देखिए यहाँ पे 12 पेयर्स हैं, यू कैन काउंट इट। यहाँ नीचे देखिएगा दो बोन्स हैं जो सर्कल को कंप्लीट नहीं कर रही, कहीं आगे आगे कनेक्ट नहीं हो रही हैं। ओके, इन दोनों को छोड़ के ऊपर जो है 10 पेयर्स हैं और नीचे ये 2 पेयर्स और हैं। इफ यू विल काउंट इट विल कम 12। मेक अप द रिब केज। द फर्स्ट 10 पेयर आर जॉइंड टू द स्पाइन एंड द ब्रेस्ट बोन। हमारे आगे की साइड में जो थ्रोट के नीचे जो ये बोन जा रही है इधर यहाँ पर, दैट इज द ब्रेस्ट बोन। और
इसके बैक साइड में जो हमारी बैक है ना, वहाँ पर हमारी बैकबोन होती है। तो रिब केजेस जो हैं वो किस तरीके से होते हैं कि पीछे से आए हमारे बैकबोन से कनेक्ट होके और घूम के यहाँ आके आगे किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रेस्ट बोन के साथ। ओके, सो the first 10 pairs are joined to the spine and breastbone. The last 2 pairs are attached only to the spine. The rib cage protect heart and lungs. Now come to the next, the bones of the arm. हमारी आर्म में जो बोन्स होती हैं, देखिए हमारी आर्म जो है कुछ इस तरीके से होती है, ये अपर आर्म है एंड ये फोर आर्म बोल देते हैं। नीचे का जो पार्ट होता है जो हमारे हैंड से कनेक्ट है, यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं। देखिए यहाँ पे हर किसी के हाथ में, हमारे सभी के हाथ में कितनी बोन्स हैं, 2 बोन्स होती हैं। देयर आर 2 बोन्स। द बोन्स ऑफ द आर्म, द अपर आर्म हैज जस्ट 1 लॉन्ग बोन, एक लॉन्ग बोन हो गया। one end of fits into the shoulder bone. ये जो अपर पार्ट है ये शोल्डर के अंदर फिट होता है। The other end is joined to the 2 bones of forearm at the elbow. This is our elbow part. Okay, this is the elbow part. यहाँ आके join किसको कर रहा है, ये जो दो फोर आर्म्स आ रही हैं इनके साथ। ओके, द शोल्डर बोन इज अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन बाय द कॉलर बोन। यहाँ देखिए स्केलेटन में यहाँ पर एक कॉलर बोन होती है एंड ये शोल्डर बोन जो है वो किससे कनेक्ट है, यहाँ पर कॉलर बोन के साथ। ये शोल्डर, ये यहाँ पे कॉलर बोन, ये कॉलर बोन के साथ कनेक्ट होता है। ओके, देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द रिस्ट। ये हमारी रिस्ट है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। बोन्स ऑफ फोर आर्म, द अदर्स आर जॉइंड टू द बोन्स ऑफ द पाम। द बोन्स ऑफ द पाम आर ऑल्सो जॉइंड टू स्मॉल बोन्स ऑफ फिंगर। फिंगर के अंदर भी बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है दैट अगर हम अपनी फिंगर्स जो हैं उनको अगर हम बेंड करके देखते हैं तो जहाँ जहाँ से भी हमारी फिंगर जो है वो बेंड हो सकती है वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सो और वहाँ पे बोन्स भी हैं, आप अगर प्रेस करके देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज द बोन ऑफ लेग। नेक्स्ट इज द बोन ऑफ द लेग। देयर इज 1 लॉन्ग बोन इन थाई। जो हमारी थाइज है वहाँ पे जो बोन होती है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बोन्स। वन एंड ऑफ दिस बोन फिट्स इनटू द हिप बोन। द अदर एंड जॉइन द 2 बोन्स ऑफ लेग्स एट द नी। जैसे हमारे देखो ये हमारा जो आर्म था, ठीक है, एल्बो के नीचे जो बोन था, यहाँ पे फोर आर्म में 2 बोन्स है ना, वैसे हमारे जो लेग का नी के नीचे का पार्ट होता है वहाँ भी 2 बोन्स होते हैं। तो जो हमारा थाई वाला बोन आएगा वो नीचे की इन 2 बोन से कनेक्ट होता है। ठीक है, विद द नी जॉइंट। द 2 बोन्स ऑफ द लेग आर जॉइंड टू द बोन्स ऑफ द एंकल। यहाँ देखिए ये एंकल से जॉइंट हो रहा है ना, ये 2 बोन आ रहे हैं ऊपर के। द जॉइंट टू द बोन्स ऑफ एंकल, द एंकल बोन आर जॉइंट टू द बोन्स ऑफ फुट। एंकल की जो एंकल के जो पॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं वो आगे फुट की जो बोन्स हैं उनके साथ जॉइंट हैं। एंड द बोन्स ऑफ द फुट आर जॉइंट टू द बोन्स ऑफ टोज। ठीक है, सो यहाँ तक टिल हेयर अभी हम रीडिंग कर रहे हैं। बाकी का रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।